So CO2 is transported in three ways. First, in the dissolved state as carbonic acid, which is then converted into dissolved state through plasma. How many percent? Then as carbaminohemoglobin, right? How much? 20 to 25%. And in the form of bicarbonate ions. How much? From lungs to body tissues and tissues to lungs, right? Lungs to body tissues क्या ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन. And body tissues to lungs क्या ट्रांसपोर्ट होता है? कार्बामाइनोहीमोग्लोबिन. Okay. Same. Oxygen in the dissolved state from lungs to body tissues and carbon dioxide in the dissolved state from body tissues to lungs. Now, mainly we'll talk about in the form of bicarbonate ions because 70% of the total carbon dioxide from tissues to the lungs through blood is transported in the form of bicarbonate ions. Bicarbonate ions का formula HCO3 minus, right? तो this part is blood. What it is? Blood. And blood is made up of two main components. Can you tell me, Chinmay? Blood is made up of which two main parts? Yes, last name. Your name? Yashwant. Yashwant. Okay. Formed elements, plasma. Good. Plasma and formed elements, that is blood cells. Students, please do revise. आता सर्क्युलेशन मध्ये आपण चॅप्टर केलाय ना ब्लडचे मेन कॉम्पोनेंट्स. प्लाज्मा दैट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड उसमें ब्लड सेल्स दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. तो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड सिर्फ आरबीसीज में क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ये दो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मेजर रोल पार्ट करता है. तो ब्लड का ये जो बाकी सारा पोर्शन है क्या है? प्लाज्मा. क्या ये? जिसमें ये क्या है? आरबीसी इज ऑल्सो अ सेल. सेल के अंदर भी क्या है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म मेजरली हैज वाटर. प्लाज्मा ऑल्सो मेजरली हैज वाटर. साइटोप्लाज्म मेजरली हैज वाटर. ओके. तो ये हम बात कर रहे हैं एट टिश्यू लेवल. विच लेवल? टिश्यू लेवल. तो ये सारे क्या है? मेड अप ऑफ सेल्स. ओके. तो टिश्यू में क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. So the carbon dioxide produced in the tissue cells, right? Is it taken up by the blood? Why? Gradient CO2. Very good. Pressure gradient PO2 and PCO2. फिलहाल हम PCO2 के बारे में बात करते हैं. What is the partial pressure of CO2 in the tissue? Very good. 45 millimeter of mercury. And what in blood?
14. So will it move from higher concentration to Lower concentration. okay. Now in 3 form. In Free form. pehla in the plasma water as dissolved state. Second through the RBCs in the form of bicarbonate ions. And third with the help of hemoglobin in the form of कार्बामाइन हेमोग्लोबिन. तो जैसे ये CO2 प्लाज्मा में आया, ये CO2 प्लाज्मा के वाटर में डिसॉल्व हो जाता है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3. But it is an unstable weak acid, unstable product, weak acid, which immediately gets dissociated into what? Bicarbonate ions and हाइड्रोजन आयंस. समझ में आया स्टूडेंट्स? But as we know, the solubility of carbon in water is how many times less than the oxygen? 500. Solubility 20%, 25%. पढ़ा है हमने ये रेगुलर लेक्चर में. You want to find it and tell me. Everything will not be spoon fooded. So तुम्हाला रातच सांगावं लागतं ब्लडचे 2 एलिमेंट्स कोणते. Very bad. You need to read it. So you want to find solubility of carbon dioxide as compared to solubility of oxygen in water is how many times less or more. Okay? तो कार्बन डाइऑक्साइड की solubility normally कम है, इसलिए तो सिर्फ सिर्फ 7% डिसॉल्व स्टेट में है, बाकी 70% आरबीसीज के अंदर है. अब ऐसे क्यों? आरबीसी में भी वो बाइकार्बोनेट आयन ही तो बना रहा है ना. देखो आरबीसी में भी क्या है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर. तो जैसे ये CO2 आरबीसी में आया, ये साइटोप्लाज्म के वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड which is a unstable product, gets immediately dissociated into. But the rate of production of bicarbonate ions, or you can say carbonic acid inside the RBCs as compared to the plasma is how many times? How many times? आता बोल बरोबर होतं मग. 500. चुकीचं. Carbon 100. Because of the enzyme which is present only in the cytoplasm of RBC, that is carbonic anhydrase. इथे शॉर्ट मध्ये लिखी. ओके. तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के लाता है, वाटर के साथ डिसॉल्व करवाता है. ये काइंड ऑफ एंजाइम, कैटलिस्ट, स्पीड अप द रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके. एंड फिर यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसको ब्रेक डाउन करता है, डिसोसिएट करता है इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन. सो दिस हैपेंस एट द more and more bicarbonate ions and hydrogen ions are produced inside the RBCs and in the plasma. Plasma में बहुत कम, 5000 times less. मतलब यहाँ पे अगर 5000 molecules of bicarbonate ion and hydrogen ion मिले, तो यहाँ पे सिर्फ 1, because here it doesn't have the catalyst, that is carbonic anhydrase. So CA मैं यहाँ पे लिख दूँ. Chartered accountant pure method. ओके. अब थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जो एंट्री मार रहा है इधर, वो किसके साथ कंबाइन होगा? बट ये जो ब्लड है, जो टिश्यू के पास आया है, इसमें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है. क्या होता है? बट अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी तो काम करेगा. इनसाइड द ब्लड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज राइट. सिस्टेमिक ब्लड है, aorta के थ्रू आ रहा है, टुवर्ड्स द टिश्यू आ रहा है. सो इनसाइड द ब्लड द PO2 इज, in the cell it is
राइट। तो इसलिए अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, कौन था, ये डिसोसिएट हो गया। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था ये डिसोसिएट हो गया हीमोग्लोबिन एंड ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, एंड फिर ये जो हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, ये किसके साथ बाइंड होता है, टू फॉर्म कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, बट वेरी लेस। जितना भी हीमोग्लोबिन वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड, थोड़ा हीमोग्लोबिन जो बचता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट्स एज अ बफर। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो आरबीसी के अंदर क्या बढ़ रहे हैं, दैट मींस एसिडिक कंडीशंस बढ़ रहा है, पीएच, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए, 7.0 टू 7.8 भी लिखते हैं किसी किसी बुक्स में, 7.35 to 7. Means between 7 to 7.8 on an average, which is slightly alkaline condition, slightly just above the 7, right? Nearly neutral, slightly alkaline. Okay, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन आयंस इधर 5000 की रेट से बढ़ रहा है, बना रहा है, तो will the blood become acidic? Then what happens? The cell membranes, the tissues, ultimately the organ gets unstable, homeostasis gets unbalanced, you know. So ये हाइड्रोजन आयन जो बढ़ रहे हैं वो पीएच डिक्रीज करेंगे, इसीलिए जो हीमोग्लोबिन है, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन है, ये इस हाइड्रोजन आयंस के साथ भी बाइंड होता है, इसके साथ, टू फॉर्म रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। When the substance gets added, is it reduction reaction? Sorry, when the hydrogen gets added, is it reduction reaction? तो यहाँ पे क्या बन गया, reduced hemoglobin, which acts as a buffer, maintains the pH of the, क्योंकि वो फ्री हाइड्रोजन आयंस रख ही नहीं रहा है। समझ में आया? ओके, अब एक और पॉइंट, यहाँ पे अगर 5000 हाइड्रोजन बन रहे हैं, चलो 5000 में से 1000, 1500, 2000 हीमोग्लोबिन ने बांध लिया अपने साथ, फिर भी कितने बचे, 2-3 हजार बचे, बाहर सिर्फ, अंदर 1000-2000। Is it pressure gradient in the hydrogen ions? Will it cause diffusion of hydrogen ions from RBC to plasma? तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर का जो पॉजिटिव आयंस वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। So in return of something it will give its hydrogen ions outside. तो प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयंस है, they are taken inside. In turn, the hydrogen ions are given out. Is it called chloride shift? Chloride is shifting from plasma to RBC, and this chloride shift is also known as Hamburger's phenomenon. याद तक समझे? तो स्टूडेंट्स, जब ब्लड टिश्यू से पास होके जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम इज दिस ब्लड कैरिंग लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, बाइकार्बोनेट शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आयंस है ना, उसके बदले ये नेगेटिव आयंस होता है। ओके, समझ में आया? तो ये जो ब्लड है टिश्यू से पास होके अब किधर जाएगा, लंग्स के पास, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस, सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट के साथ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ओके, थोड़े बहुत फ्री हाइड्रोजन आयंस भी है, राइट। अब ये सब आए किधर, ब्लड के साथ लंग्स, दैट इज एट एल्वियोलार लेवल। So this region is, now your alveoli are filled with, again this is
ब्लड, राइट? तो ब्लड के अंदर है ये एंड ये है। अब जैसे ही ये आए एल्वियोलार लेवल में, लंग्स के पास, ओके, अब ये ब्लड के अंदर क्या था? करेक्ट। So HbCO2 will get dissociated. Hb and CO2 will be given and O2 will be taken. So some of the O2 will be in the dissolved state, will be carried through plasma, right? Dissolved oxygen. कितना परसेंट? 3%. ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में. Then majority of the oxygen will bind with to form कितना परसेंट? 97. लेकिन अब ये हीमोग्लोबिन चलो या तो डिसोसिएट हो गया, अब अपने पास बचा क्या है? हमारे पास है H+ आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस. जैसे ही ये एल्वियोलार लेवल में आए, इधर आए, देखो मैं उल्टा लिख रही हूँ. जब वो उधर थे तो वो HCO3- एंड H+ है, अब उल्टा जा रहा है. क्यों? अगेन द प्रेशर ग्रेडियंट. यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है इन द ब्लड? कितना एग्जैक्टली? PCO2 कितना है यहाँ? 40. करेक्ट. एंड यहाँ पे कितना है? तो यही है ना वो PCO2 इन द फॉर्म ऑफ carbon dioxide in the form of bicarbonate ions inside the RBC as well as outside the RBC in the plasma. अब जैसे ये alveolar level में आते हैं, as there is a pressure gradient of the oxygen here, more oxygen in the alveoli, less oxygen in the cell, so the hemoglobin immediately leaves carbon dioxide. दो को दे देते हैं, छोड़ देते हैं. किसके साथ बाइंड हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन, राइट? एंड जैसे ही ये प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एंड O2 का भी, बाइकार्बोनेट आयंस इमीडिएटली कंबाइंस विद हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म and that breaks into which is given. Same here outside is 2CO3 will break down into H2O and into tissues. अब यहाँ पे जो reduced hemoglobin था, इसने भी किसको छोड़ दिया? यानी हीमोग्लोबिन फ्री हो गया वापस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए, प्लस यही H+ आयंस जाके HCO3 के साथ बाइंड होते हैं, H2CO3 बनाते हैं, फिर वो ब्रेक होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड टू द. समझ में आया? ओके. अब यहाँ पे इसके अंदर के जो नेगेटिव आयंस है वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं. इसने ऑलरेडी दान कर लिए, पहले वो ज्यादा थे तो दे दिए, अब इधर आने के बाद उसके और कम हो गए, तो इसने जो अंदर फ्लोराइड आयंस लिए थे वो वापस बाहर गए, वापस to maintain the balance of outside and inside charge, which is called as reverse chloride shift. उधर क्या हुआ था? बाहर से अंदर आया था, अब रिवर्स जा रहा है, so it is called as reverse chloride shift, or you can say reverse Hamburger's phenomenon. Understood, students? The way how the CO2 is transported between the blood tissue and the lungs. Any doubt? Understood? Will you do it here or at home? Your wish. Did you get that? Those who are online, any doubts? No, ma'am.
Is it visible or should I click photo and share the screen? Ma'am, please. Okay. Report. So रेस्पिरेशन के इवेंट्स ऑलमोस्ट हो गए. सबसे पहला ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन lungs and the atmosphere. Second, external respiration, that is exchange of gas between alveoli and the blood. Then transport of gases, we just now studied transport of CO2 and O2. Fourth, internal respiration. So what happens in internal respiration? I think you wrote ABC, ऐसा पॉइंट लिखा है कि 1 2 3 4 लिखा है. Just check out. डी द्यायचा का 4 द्यायचा? सगळ्यात पहिले ब्रीदिंग बघा. स्टार मार्कच दिले. ओके ठीक आहे. It is internal that is also called as cellular respiration, right? ऑक्सीडेटिव पॉस्फोराइलेशन. Correct. So internal respiration क्या है फिर? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ओके, तो वही हुआ ना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में. यस. कवर वही हुआ बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. फिर इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. so which are the 2 steps of cellular respiration? ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन. तो ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली जो स्टेट बोर्ड की बुक में है वही कॉपी करें. ओके, so what is there in oxidation? Organic compound is oxidized to Organic compound, that is glucose, mainly glucose, converted into pyruvic acid, converted into acetyl coenzyme A, enters into mitochondria and gets oxidized, undergoes Krebs cycle to produce NADH2 and FADH2. They then undergo electron transport chain reaction finally to produce ATP molecules, that is phosphorylation. Phosphorylation दो टाइप का होता है. Very good. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, वो खुद एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. वो अपना फॉस्फेट एडीपी को देता है. जो सबस्ट्रेट है वो अपना फॉस्फेट किसको देता है? टू प्रोड्यूस. And oxidative phosphorylation is electron transport chain reaction, जहाँ पे NADH2 and FADH2 जैसे oxidized or reduced substances, reduce, they get oxidized. oxidized. They lose their hydrogen. When they lose their hydrogen, NADH2 becomes NAD plus FADH2 become, right? तो ये जो reduced substances है वो क्या हो गए? Oxidized. उन्होंने अपना sorry हाइड्रोजन लूज किया. At the same time they release Electron. these electrons gets transported from the series of coenzymes to produce more and more hydrogen pump from hydrogen ions gets pumped from where to where? From mitochondrial space to matrix. पढ़ो रे पढ़ो. From mitochondrial from intermitochondrial space, you know outer membrane and inner membrane के बीच में जो space है वहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन है. वो किधर ट्रैवल होता है? मैट्रिक्स में. Are you understanding? Correct? Matrix आपको जैसे साइटोप्लाज्म. मॅट्रिक्स मधून सायटोप्लाझम मध्ये कुठं? हे मायटोकॉन्ड्रियाच्या आत होती आहे प्रोसेस.
इंटरमीडिएट ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इथं असतं ना कोएंजाइम 1 2 3 4 and 5 यांच्यामध्ये युबिक्विनॉन अँड 1 2 मध्ये असतो युबिक्विनॉन अँड साइटोक्रोम सी 3 and 4 च्या मध्ये असतो राइट. सो NADH टू FADH2 कहाँ पे प्रोड्यूस हुए? मैट्रिक्स एंड इधर ही कौन है? मोर. माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में लेस. तो ये NADH अपना क्या लूज कर रहा है? साथ में क्या रिलीज कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन. ये एंजाइम को एनर्जाइज्ड कर देता है ना, एनर्जाइज चार्ज अप, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी हाइड्रोजन को खींचने के लिए लगा देता है. यस. तो ये जो प्रोसेस है ये सब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के, फॉस्फोराइलेशन के, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में. क्यों ऑक्सीडेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. आज रिझल्ट ही प्रोसेस परत स्टडी करा. आजच्याच जेव्हा जो टॉपिक मी विचारते आठवत नाही लगेच घरी रिवाइज करायचं. गॉट इट? कारण ठीक आहे एकदा नाही आलं दॅट्स फाईन. जे नाही येते तुम्ही त्याच दिवशी जर घर जाऊन वाचला ना मग ते परमनंटली मेमरीत राहतं. दॅट इज अ फॅक्ट. आता नाही येते ठीक आहे, पण तुम्ही आजच्या आज घरी जाऊन ते वाचलात ते तुम्हाला खूप लॉन्ग टाइम साठी लक्षात. ओके. सो सेल्युलर रेस्पिरेशन के 2 पॉइंट्स जो अपनी टेक्स्ट बुक में दी हुए है बोर्ड्स की, उसी में से डायरेक्टली कॉपी करो. ओके. सो एनी डाउट? सो डन विथ रेस्पिरेशन राइट. अब स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन में हमने कही तो तुम बताओ मुझे कहाँ पे बोर्स इफेक्ट पड़ा था? वेरी जो कौन राइट शिफ्ट होता है तू के में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सिग्मोइड कर्व, एस शेप्ड कर्व राइट. Is it only right shift? Right भी shift होता है या under certain conditions? Right? चलो क्विकली बताओ, याद आ रहा है तो बुक्स बंद रखो. एक मिनट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. y एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं एंड x एक्सिस पे क्या शो करते हैं? सैचुरेशन ऑफ SiO2. यस. सो यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन जो अपनी बॉडी में वो कितना सैचुरेट हो गया. एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो 100% सैचुरेट राइट. एंड एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ओके. 10 20 30 40 50 राइट. राइट. तो अब स्टूडेंट्स ये है सिग्मोइड कर्व. अगर we have high CO2 in our blood, yes, तो ये जो कर्व है किधर शिफ्ट होता है? राइट. करेक्ट. एंड अगर we have low CO2 in the blood, it gets shifted to Bohr's effect, actually Bohr and Edel's effect. लेकिन अब हम बात करेंगे in the pregnant female we get to see double Bohr's effect. What we get to see?
fetal hemoglobin is denoted as HbF and adult hemoglobin बोलो HbA. तो स्टूडेंट जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इनसाइड द यूटरस ऑफ द मदर थ्रू प्लासेंटा, ब्लड इज नॉट एक्सचेंज, द मटेरियल बिटवीन द ब्लड इज एक्सचेंज. हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है डिटेल में. ओके, तो फ्रॉम द फीटल ब्लड what is released into the maternal blood? Nitrogenous waste and carbon dioxide, right? अब देखो, सबसे पहला you need to know that fetal hemoglobin has more capacity to carry than adult hemoglobin, right? अब मैं ये कॉल वापस निकाल रही हूँ. ये है मदर का, वी कॉल इट एज अडल्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिग्मोइड गर्ल. ओके, अब सोचो, द fetus, the embryo is developing inside the mother's body, जिसमें फीटल हीमोग्लोबिन है. स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए कि फीटल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, जो मैंने अडल्ट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था ना, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा, सेंटर में अमाइनो ग्रुप, साइड में हीम ग्रुप इन ईच चेन. ओके, तो ये है अडल्ट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर. फीटल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है. अब जब फीटस releases what into maternal blood, we are talking about respiratory gases, बाकी कुछ नहीं. So fetal releases इससे दो चीजें होती है. पहला, fetal PCO2 decreases, but the right रिलेट करो. तो मदर का ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का किधर शिफ्ट होगा, एंड बेबी का इज इट डबल बोर्ड. समझ में आया? नाही समजलं तर आपण इथे काय स्टडी केलंय, हा आपला सपोज एका सिंगल अडल्टचा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व आहे, प्रेग्नेंट वगैरे कोणाचं, एक सिंगल अडल्ट आहे, मेल आहे, फीमेल आहे, व्हॉटएव्हर इट इज, त्याचा हा नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व आहे. पण तो कधीच असा कॉन्स्टंट, कारण सतत आपल्या बॉडीमध्ये एक्सचेंज ऑफ गॅसेस चालू असतं, सतत PCO2 इन्क्रीज डिक्रीज होत, कारण त्याचं नॉर्मल झालं तर ॲब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम, होमिओस्टॅसिस, म्हणजे सगळं नॉर्मल आहे तर बॉडी फंक्शनच करणार नाही ना. ओके, सतत काहीतरी कमी जास्त पाहिजे जे इक्वलाइज करण्यासाठी बॉडी ऑर्गन सेल्स टिश्यूज काम करते, मेटाबॉलिज्म, राइट, हमने पढ़ा है. तो अब यहाँ पे ये नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, जो कभी भी इस स्टेट में नहीं रहता. वो या तो हम कभी राइट साइड में शिफ्ट होता है, तो कभी आपला ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व राइटला कधी शिफ्ट होईल, जेव्हा कार्बन डायऑक्साइड लेवल इन द ब्लड विल बी, तोच लेफ्टला कधी शिफ्ट होईल, लोअर साइड, राइट. हे नॉर्मल. पण इथे जेव्हा प्रेग्नेंट लेडी आहे तर तिच्यामध्ये जो याला आपण बोअर्स इफेक्ट म्हणतो, राइट, तो डबल बोअर इफेक्ट असतो. कारण जेव्हा फीटस रिलीजेस द कार्बन डायऑक्साइड इनटू द मदर्स ब्लड, इथे लिहिलंय ना, बेबीच्या बॉडीमध्ये CO2 इज लेस, सो बेबी का ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व towards, that is fetal Bohr's effect, but maternal में it is shifting towards. So ये भी
Bode's effect P है and ये B. So it is. And Q ये left में shift हुआ. So should I write here CO2 and Q ये right में shift हुआ. समझ में आया? Double Bohr's effect in simple few steps. Okay, write down quickly. लेफ्ट शिफ्टला हार्डन इफेक्ट बघा. लेफ्ट शिफ्टला हार्डन इफेक्ट बघा. हो पण इथे याला जस्ट बोर्स इफेक्ट म्हणूनच कन्सिडर करायचं कारण हे सायमल्टेनियसली रन होते इन टू डिफरंट बॉडीज. ओके, ऍक्च्युअली हायड्रेट इफेक्ट काय आहे? बायकार्बोनेट आयनशी रिलेटेड. ऍक्च्युअली आपल्याला स्टेट बोर्डच्या बुक मध्ये दिलं. You know, bicarbonate ions and hydrogen ions when increases the production of CO2 and then it shifts to right, then it is. But actually shift is given by given by Bohr. तो basic Haldane चा base काय है? Bohr's effect, right? ये साइड वाला ड्रॉ मत करो, हमने ऑलरेडी किया है. डायरेक्टली सिर्फ ये पार्ट करो, डबल बोर्स इफेक्ट. ये वाला मैंने समझने के लिए वापस एक बार ड्रॉ किया ना, ये तो हमारा पिछले लेक्चर में ही हो गया. डोंट डू दिस. Ma'am, you are in mute. ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ओनली. तो सबसे पहला विल टॉक अबाउट हीलम, हाइलम. जैसे किडनी में भी होता है. इट इज नॉट फ्रॉम वेयर द ब्लड वेसल्स कैन एंटर एंड एग्जिट. नर्व्स आर सप्लाइड, यूरेटर कैन एग्जिट फ्रॉम द किडनी. सेम वैसे लंग्स में ये जो नॉच है, फ्रॉम वेयर द ब्रोंकाई कैन enter, blood vessels can enter or exit. Are you understanding? Yes. The same kind of. So hilum is the notch in the lungs for supply or exit of bronchi, nerves, blood vessels and lymphatic vessels, right? Do I need to draw the diagram and tell? अगर ये है bronchi, ये है lung, तो ये जो रीजन लगा जहाँ से ये एंटर किया, here is a slight notch over here that opens for receiving or exit of the blood vessels and other things. Okay. Surfactant. The alveolar cells. Alveoli is a kind of structure which is made up of tissue. Tissues are made up of. So the cells of alveoli secretes alveolar fluid. Secretes, and that alveolar fluid contains the special chemical substances which are called as surfactant. And which are those two special substances? Phospholipids such as lecithin. Biomolecules chapter में पढ़ा है हमने. So phospholipids such as lecithin and the lipoproteins, these are present in the alveolar fluid. While I got surfactant, अगर ये है alveoli, ये है उसका fluid, तो यहाँ पे कौन present है? Surfactant. They decrease the surface tension of the alveolar fluid. Decrease the pressure. जैसे कि ऑक्सीजन एंटर हो रहा है, ये अगर absolutely fluid होता तो ऑक्सीजन एंटर होने के बाद surface tension and the alveoli would collapse. But because of this surfactant, the surface tension, the pressure acting on the surface of the alveolar fluid is decreased and the alveoli doesn't collapse. So decreases surface tension of alveolar fluid, prevents alveoli to collapse, right?
फॉर्म बीपीजी भी हो सकता है या बाइफॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो है इट इज प्रोड्यूस्ड इन द आरबीसीज ड्यूरिंग, and this is the chemical substance which help in dissociation of जब टिश्यू के पास सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है HbO2। Hb ने अभी यहाँ पे ब्रेकअप करना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पे जैसे पार्शियल प्रेशर मैटर करता है, यू नो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन लेवल इज लो, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल इज हाई, बिकॉज ऑफ दैट द ऑक्सीजन ब्रेक्स अप with the hemoglobin and enters into tissues. But one more chemical is responsible for this breakup, for this dissociation. Who is that? BPG, which is produced in the RBC itself, क्योंकि RBC में ही हीमोग्लोबिन है। जैसे ही टिश्यू के पास आया, RBC के अंदर का BPG हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन को डिवाइड कर देता है। Are you understanding? स्प्लिट कर देता है। Next is Schinderian membrane. It is the mucous membrane of the nasal cavity. जो nasal cavity अपना बोलता गलती को देते रही, right? तो वो जो अंदर का membrane है, mucous membrane, sticky fluid secrete करता है, is called Schinderian membrane. Okay? Next is Bowman's gland. Students, इसके बारे में ना डिटेल में हम control coordination chapter जब NEET में पढ़ेंगे, we are going to study the olfactory epithelium. You know यहाँ पे olfactory, यहाँ के जो epithelial cells है, they are connected to neurons of the olfactory bulb and then to the peduncle and then to the temporal region में और area of smell, right? हमने पढ़ा है। तो ये olfactory epithelium का बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसमें Bowman's gland करके होती है, but that will study in detail in that part. तो फिलहाल इतना याद रखो, Bowman's gland are the glands present in the olfactory epithelium tissue. Okay? Next है atelectasis. It is nothing but when the alveoli gets deflated. What is deflation of alveoli? Filled with air or empty? कभी कभी ऐसे हो सकता है कि alveolar fluid secrete नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से they get completely deflated. Okay? That causes the lobe of the lungs or the entire lung to collapse. That condition is called as atelectasis. Got it? हमने पढ़ा ना, राइट लंग हैज 3 lobes, लेफ्ट लंग हैज 2। तो कभी भी हो सकता है कि सारे के सारे एल्वियोला डिफ्लेट हो सकते हैं या सिर्फ किसी लोब के एल्वियोला, तो उतना लंग क्या दिखेगा, पंक्चर, राइट? टायर में से हवा निकल गया, उतना ही रीजन से पंक्चर दिखता है, वैसे दैट इज कॉल्ड एटेलेक्सिस, दैट इज पंक्चर ऑफ द लंग्स। इधर से ऐसा लिखो मत। नेक्स्ट ये हमने पढ़ा है रेगुलर लेक्चर में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हीमोग्लोबिन का पहला पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा पेयर ऑक्सीजन है, क्योंकि अगर एयर में ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज करेगा, बिकॉज उसकी एफिनिटी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज 250 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। तो ऐसे में अगर कोई पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रीथ कर रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसके बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस सडनली स्लो डाउन एंड देन स्टॉप हो जाएगी, नो एनर्जी, सेल्स विल स्टार्ट डाइंग, अल्टीमेटली द टिश्यू ऑर्गन बॉडी विल स्टार्ट। तो इसके लिए इमीडिएट जो फर्स्ट एड होना चाहिए या जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, दैट इज कंजम्पशन ऑफ कार्बोजन। तो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, जैसे कार्बोजन सिलेंडर, इमीडिएटली उसको वो मास्क लगाया जाता है, पंप किया जाता है, क्या कार्बोजन इज अ मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन इज टू 5% कार्बन, क्योंकि हमारी बॉडी में ये दोनों गैसेस का एक्शन है। डायरेक्टली प्योर ऑक्सीजन भी सप्लाई करोगे तो वो मैकेनिज्म बॉडी एक्सेप्ट, तो थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन, ये क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एडमिनिस्ट्रेशन, कंजम्पशन और सप्लाई ऑफ कार्बोजन शुड बी द इमीडिएट ट्रीटमेंट, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाता है। नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ये भी हमने पढ़ा है, इट इज इट अ मसल हीमोग्लोबिन इन शॉर्ट, बट इसके और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? Hemoglobin is made up of 4 polypeptide chains. Myoglobin is made up of only 1 polypeptide chain, having only one heme group, so it can bind with only
तो ये मसल्स के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. सो मायोग्लोबिन इज नथिंग बट muscle hemoglobin, extra source of hemoglobin, which is made up of only single polypeptide chain. So it can bind with only ठीक है, रिकॉर्ड होता है ना. Now the P50 value of myoglobin is 2.75 millimeter of mercury. What is P50 value? It is the value of the pressure of the hemoglobin where hemoglobin is 50% saturated. Only two chains are bonded to oxygen, right? Normal value of P50 is 26.7 millimeter of mercury. ये आता है क्वेश्चन नीट में, ये वैल्यूज के ऊपर. मसल में इसका वैल्यू कितना है? 2.75. बट नॉर्मल वैल्यू ओवरऑल इन द बॉडी इज, समझ में आया? Now elephant seal, it is an aquatic mammal. It can remain dipped in the water. seal क्या करता है? पानी के बाहर आता है, अंदर जाता है, पानी के बाहर आता है, अंदर जाता है. क्यों बाहर आता है? ऑक्सीजन लेने के लिए. I understand. But it can still remain continuously 2 hours under the water because its muscles also has extra source of oxygen. So 2 घंटे तक वो completely underwater survive कर सकता है. Cyanosis. It is the condition of bluish discoloration, especially of lips and nails. बॉडी ना थोड़ा सा ब्लूइश टिंच है, डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी थोड़ा सा ब्लूइश, मेनली लिप्स एंड नेल्स, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ मेथेमोग्लोबिन इन द बॉडी. What is methemoglobin? It is the condition where oxyhemoglobin is unable to dissociate even though there is a pressure gradient. ये कंडीशन जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट. चलो रिलेट करो किसके साथ. ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना, टिश्यू तक आया, लेकिन वो डिसोसिएट ही नहीं हुआ. भले ही PO2 का प्रेशर ग्रेडियंट है, in the tissue 40 only, in the blood 95, ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई करने के लिए. वेरी गुड. जेनेटिक कंडीशन जहाँ पे आरबीसीज में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेसिंग अफेक्टेड है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, बीपीजी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जो हेल्प करता है ना डिसोसिएशन ब्रेकअप. राइट? अंडरस्टूड? सो इट कैन बी जेनेटिक. वन मोर रीजन इज देयर. Due to taking oxidizing drugs, मोस्टली ये जो होते हैं ना हीरोइन, कोकेन, गांजा वगैरह, ये ऐसे टाइप के ही ड्रग्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग ड्रग्स हैं. ये जो ड्रग्स है ऑक्सीडाइजिंग मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो जल्दी छोड़ता नहीं ना फिर ऑक्सीजन. समझ में आया? ओके. सो ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है. नेक्स्ट लेक्चर में इतना भी नहीं, बहुत थोड़ा चैप्टर रह गया है, वो कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे. ओके. एनी डाउट इन टुडेज सेशन? तुम्ही बोलत का नाही रे.